Hello everyone. How are you guys? I hope am I audible and visible to all of you. Yeah. I hope you all can see me also. So today I will be discussing a new topic, that is a PYQ on the basically we'll discuss a PYQ on sitting arrangement, which is a part of LRDI. Okay, this is a part of LRDI, guys. So before proceeding, I will be guiding you some of the basic, तो थोड़ा सा बेसिक आपको बताऊंगा मैं. Then guys, we will discuss some of the the questions of this. Then we will discuss some of the question of this one. Then let me take out the slide, guys, that where I have put the slide of this one. So let me take out that. Okay, wait for a second. So let me open the slide. Okay, so I think this is now okay. So as you can see, the question is present in front of you. This is a PYQ on LR and DI, which will be quite, this will help you a lot in coming MGT exams. So I hope that this is visible to all of you now. I hope now that this is visible to all of you. Now let this comes. Okay, so today we will do 2 or 3 questions on this particular टॉपिक. आज हम लोग 2-4 क्वेश्चन करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए. सो गाइज लेट अस सी. स्ट्रेट फॉरवर्ड लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग देखते हैं सीधा का सीधा क्वेश्चन. सो गाइज दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. कम ऑन एवरीवन, जस्ट ट्राई डूइंग दिस. कम ऑन गाइज, come on everyone, try do this question. See, it is written that 8 friends, Hina, Chandan, Neeta, Gaurav, Bhavesh, Pranav, Dinesh and Isha are sitting in a row facing north. All of them like different colors. We are red, pink, orange, green, yellow, black, violet, blue. And there is only one person between Neeta and one who likes violet. Dinesh is neither an immediate neighbor of Neeta nor he likes a green. Hina sits 4 to the left of one who likes violet, but she does not like pink. The person who likes black is third to the right of one who likes green and sits to the immediate right of Hina. The person who likes green sits at the one of the extreme end of the row. Chandan does not like green. Pranav is an immediate neighbor of both. So this is a quite a big one. You can see the Bhavesh sits third to the left of Neeta and likes yellow. There is only one person between the person who likes yellow and the black. So as you can see that this is a quite big one. ये बहुत बड़ा है अगर आप puzzle solve करेंगे. Again I will be asking a same question कि हमें start कहाँ से लेना है. हमें start कहाँ से लेना है. So as you can see guys, from where we would start. अगर हम start करेंगे तो सब लोग फेसिंग नॉर्थ कर रहे हैं. ईशा ईशा से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग. ईशा से. ईशा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलेटिवली टू दिस क्वेश्चन. तो दिस इज अ वेरी गुड PYQ. ये बहुत ही अच्छा PYQ है. सो आप गाइज, आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, एल्स आई विल शो यू द रिजल्ट. मैं आपको बिल्कुल इसका रिजल्ट दिखाऊंगा कि हमें स्टार्ट कहाँ से लेना है. ओके, एंड यू आर हैविंग द ऑप्शंस ऑल्सो. मैंने कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस प्रीवियस में करवा दिया है. सो यू कैन सी द प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने करवाया है, उसी बेसिस पे ये बनेगा. ओके, सो गाइज प्लीज डू इट. दिस विल हेल्प यू अ लॉट. प्लीज डू इट गाइज. एवरीवन डू सॉल्व करें गाइज. दिस गोना हेल्प यू अ लॉट. आई होप द स्लाइड इज विजिबल. I hope the slide is visible to you.
I hope the slide is visible to you. Okay, so come on, try doing. Okay, करते हैं फिर. Try doing this question. Okay, now you can start from Isha sits at the one of the extreme end of the row. You can start from Isha. आप ईशा से शुरू कर सकते हो. देखो मैं तो बना दूंगा, मुझे बनाने में टाइम नहीं लगेगा. आप ईशा से स्टार्ट कर सकते हो कि ईशा जो है वो एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो में काम कर रही हैं. शी इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, इजंट इट? ईशा इज सिटिंग टू द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, इजंट इट? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ईशा आपके एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो में बैठी हुई है. तो गाइज आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ से, आपको बनाना है तो दिस वुड बी अ क्वाइट इजी वन. आप ऐसे बना सकते हो. तो 8 लोग बैठे हैं, 8 लोग मैंने भी बैठा दिया. ईशा को मैं यहाँ बैठाता हूँ, ठीक है, वो सही रहेगा. ईशा को मैं यहाँ बैठाता हूँ, ठीक है. और ईशा किसी कलर को पसंद नहीं कर रही है. ओके ओके ओके. नाउ गाइज आई कैन स्टार्ट फ्रॉम दिनेश. दिनेश से शुरू करें हम लोग. दिनेश इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ नीता नॉर ही लाइक्स ग्रीन. दिनेश से भी शुरू करके कोई फायदा नहीं है. हिना इज 4 to the left of one who likes violet and pink. Okay, then guys, Pranav is immediate. Okay, one who sit the extreme ends of the row. देखो ग्रीन, ये बहुत अच्छे से मेरे को क्लियर है कि द वन हु लाइक्स ग्रीन सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो. मैं थोड़ा सा क्लू देता हूं आपको, ठीक है. अब ईशा को नहीं है, देखो पहले ही लिखा था ना यहाँ पे ईशा को ग्रीन है, तो मतलब यहाँ वाले इंसान को तो ग्रीन पसंद होगा. तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, एंड ग्रीन एंड सिट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ हिना. ग्रीन जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ हिना के बैठ रहा है. कम ऑन एवरीवन, इमीडिएट राइट ऑफ हिना, on the immediate right of Hina. Okay, the person who likes black is third to the one who likes green. And okay, मैं समझ गया. चलिए आप लोग guys, come on, do it. Now the one who likes green sit at one of the end of the row. Chandan does not like green. चंदन को green पसंद नहीं है. तो कौन पसंद कर रहा है green को? The important thing is that green हमें मिल गया है. कौन पसंद कर रहा है guys? Come on. Hina is 4 to the left of one who likes violet. Now see, Dinesh is neither immediate neighbor of Neeta nor he likes green. दिनेश यहाँ भी नहीं है. तो दिनेश अगर यहाँ नहीं है और दिनेश को और भी चीज़ें पसंद नहीं है, तो मैं दिनेश को यहाँ बैठा सकता हूँ. मैं दिनेश को यहाँ बैठा सकता हूँ. और अगर दिनेश यहाँ बैठेगा तो दिनेश को वायलेट पसंद होगा. आई होप यू गाइज आर सीइंग दिस. दिनेश को वायलेट पसंद होगा. ओके, और अगर दिनेश यहाँ बैठेगा गाइस, तो ये आप थोड़ा ध्यान से देखें. सेकंड और थर्ड लाइन से एक चीज़ और क्लियर है आपको गाइस. सेकंड और थर्ड लाइन से एक चीज़ और क्लियर है आपको काफ़ी अच्छे से. ये और ये वाले लाइन से आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि दिनेश के जस्ट बाद प्रणव बैठ रहा है और प्रणव लाइक कर रहा है गाइस. प्रणव इज लाइकिंग ऑरेंज. ओके, और ग्रीन के जगह पे गौरव बैठेगा. ग्रीन के जगह पे गौरव बैठेगा. यहाँ पे भावेश बैठ जाएगा. यहाँ पे भावेश बैठेगा. ये 2 जगह आपके लिए खाली है. तो एक हिना हो जाएगी. 3 है इनफैक्ट. एक हिना है, हिना, एंड देन द सेकेंड पार्ट इज चंदन एंड देन नीता. देन वी हैव चंदन एंड देन वी हैव नीता. सो गाइज दिस इज द ऑल पजल. ये बिल्कुल पजल है. ओके, बट आई विल सजेस्ट यू टू दैट ट्राई सॉल्विंग दिस पजल बाय योर ओन. आप लोग खुद से सॉल्व करें. ये कैट एग्जाम्स में पूछा गया है और कई सारे मैनेजमेंट एग्जाम्स में आता है. जैसे ये 2000 आई थिंक दैट 16 का क्वेश्चन है कैट का. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज. डिटेल अगर आपको देखना है गाइज, सो इट इज़ प्रेजेंट. आप डिटेल यहाँ से भी ले सकते हो. ये देखो मैंने डिटेल यहाँ पे बना के रख दिया है. ओके, सो यू कैन सी द डिटेल्स ऑफ दिस क्वेश्चन ओवर हेयर. एल्स मैंने आपको बता भी दिया कि स्टार्ट कहाँ से लेना है. द प्रॉब्लम जो बच्चों को होता है इसमें वो होता है कि सर फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट. फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट.
शुड स्टार्ट। यही प्रॉब्लम होता है बच्चों को, और यही प्रॉब्लम मैं आपको बचा रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि फ्रॉम वेयर यू शुड स्टार्ट। ओके, चलिए सेकंड में आते हैं गाइस। ये एक और पजल है जो नाउ आई वुड से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्राई सॉल्विंग दिस वन। आई होप आपको पजल क्लियरली विजिबल होगा। आई होप गाइस पजल आपको क्लियरली विजिबल होगा। इजंट इट एवरीवन? ये एक और क्वेश्चन है। अच्छा, ये थोड़ा सा आगे हो गया है, सो लेट मी शो यू द क्वेश्चन। ओके, चलिए तो दिस, सो गाइस ट्राई सॉल्विंग। चलिए सॉल्व करिए। ओके, नाउ ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। अगेन ये सवाल है कि वो सारे के सारे स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। सो आई विल गिव यू सम टाइम गाइस, ट्राई डूइंग दिस। कोशिश करो खुद से करने का, दैट वुड बी अ क्वाइट गुड, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, कोशिश करें गाइस खुद से सॉल्व करने के लिए, देन विल ट्राई सॉल्विंग। हम लोग कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने का। ओके, आई होप यू गाइज आर गेटिंग दिस। मतलब उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। तो गाइज अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी काफ़ी इजी पैटर्न है, काफ़ी ही कुछ टफ नहीं है। देन अगेन यू कैन मेक अ लाइन। और कितने लोग बैठे हैं? एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ लोग बैठे हैं, तो यू कैन बेटर ड्रॉ 8 लाइन्स। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। दिस वुड बी अ बेटर 8 ड्रॉ करना। ठीक है, अगेन स्टार्ट कहाँ से लेना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सट्रीम एंड कहाँ लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एच फेसेस नॉर्थ, भी क्लियर है कि एच फेस कर रहा है नॉर्थ को। सी सिट एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, देखो सी एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, मैं किसी भी एक को ले लेता हूँ। ठीक है, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो मैं लेफ्ट थर्ड लेफ्ट मतलब दो छोड़ के यहाँ बैठा देता हूँ। बेसिकली कोई दिक्कत नहीं होगा, दो छोड़ के मैं यहाँ बैठा दूंगा, क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। A sits third to the left of C. D is not immediate neighbor of C. D immediate neighbor C के नहीं है, तो D तो कहीं भी बैठ सकता है। तो D को एक बार चेक करते हैं यहाँ बैठा के, क्या दिक्कत होगा? आई डोंट से कि कोई दिक्कत होना चाहिए। G sits to the right of A. G sits to the right of A. थर्ड टू द राइट ऑफ ए, तो ए अगर यहाँ बैठा है तो मुझे पता नहीं है ना कि, ऐसा मैं करता हूँ, थर्ड टू द राइट बोला है तो इधर बैठेगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसको अगर इस साइड करूँगा तभी ये यहाँ जी बैठेगा। इजंट इट गाइस? ओके, वेरी गुड। नाउ बी सिट्स टू द इमीडिएट नेबर ऑफ बी, डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड,
चलो बी एक्सट्रीम में नहीं बैठ रहा है और जी के जस्ट बगल में बैठा है, तो अगर जी यहाँ बैठा है तो यहाँ बैठा देते हैं इसे, ये यहाँ बैठ जाएगा बी, इजंट इट? यहाँ बैठ जाएगा बी, हो गया ना? ना ओनली 1% सिट बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में एक इंसान बैठ रहा है। अब आप बताइए, एफ और डी के बीच में एक इंसान बैठ रहा है, एफ कहाँ बैठेगा? एफ और डी के बीच में एफ, तो एफ और डी यहाँ बैठेंगे दोनों, ठीक है। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी फेस द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ जी, सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो ये अगर इंसाइड करेगा तो ये भी इंसाइड करेगा, और इसको मैं ई बोल देता हूँ। ऑब्वियसली ई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ठीक है। ई फेसेस द सेम डायरेक्शन ऑफ बी, ई जो है बी का सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है। ओके, तो ये आपका लास्ट रह गया, ये हो गया एच, और एच के बारे में कहीं कुछ नहीं दिया है, तो आई वुड बी टेकिंग एच एज ए नॉर्थ। बस एफ का गाइस, एफ आई वुड से एफ, एफ नॉर्थ होगा, है ना? सो गाइस देखो, ये भी एक पजल ही है, शॉर्ट क्रिस्प वन। तो यू कैन सॉल्व दिस, ये भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वन ऑफ द पी वाई क्यू, बेसिकली आईएफटी में पूछा गया था ये। ओके, आईएफटी 2000 शायद 8 का क्वेश्चन है ये। तो गाइस लेट अस सी सम, ये अगर आप डिटेल देखना चाहेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, डिटेल। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ना, दिस इज क्वाइट इजी वन। ये शायद मेरे को लगता है कि ये बहुत पुराना सवाल है, ये कैट मतलब 90s का सवाल है ये। ओके, चलिए गाइस इस क्वेश्चन को करिए, ये मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ये मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, दिस यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप लोग खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जस्ट ट्राई सॉल्विंग। ओके गाइस, सो लेट मी शो यू। इस क्वेश्चन को काफ़ी आसान तरीके से बनाया जा सकता था, एंड आई डायरेक्टली आई विल शो यू द दिस वन। काफ़ी आसान था सवाल, तो ये आप लोग बहुत जल्दी कर लोगे, इसमें कोई इशू नहीं होगा आपको, पर्टिकुलरली यही है ये। ओके, चलिए सो गाइस एक और क्वेश्चन करते हैं, कम ऑन, एनीवन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, एनीवन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, कम ऑन, प्लीज सॉल्व, दिस वुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रिसेंटली पूछा गया है, ये रिसेंटली पूछा गया है कैट में। ओके, ये रिसेंटली कैट में पूछा गया है।
ये दिस यू कैन मेक, ये काफ़ी आसान भी होगा आपके लिए, है ना। एज यू कैन सी दैट चार लोग बैठे हैं आई गेस, हाँ, चार लोग बैठे हैं। एक आप रो वन कह सकते हो, एक रो टू कह सकते हो, एक दो तीन और एक चार, यहाँ एक दो तीन और एक चार, अराउंड आपको बैठाना है। बी फेसेस वन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ एच, यहाँ शुरू कर सकते हैं हम लोग। बी फेसेस वन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ एच, कर सकते हैं। अगर मैं एच को यहाँ बैठा दूँ तो मुझे बी को यहाँ बैठाना पड़ेगा, क्या ही दिक्कत है ना। और फिर गाइस ओनली वन स्टूडेंट सिट बिटवीन बी एंड वन हु लाइक्स ग्रीन, तो ग्रीन ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन ऑब्वियस सी बात है यहाँ बैठेगा, है ना। ग्रीन ऑब्वियस सी बात है यहाँ बैठेगा। इन दैट ऑर्डर इमीडिएट नेबर ऑफ ई, इन दैट ऑर्डर, देखो यहाँ भी एक और चीज क्लियर, इन दैट ऑर्डर दैट इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई। इमीडिएट नेबर ऑफ ई, अच्छा ई यहाँ बैठ जाएगा फिर, है ना। ई फेसेस द वन हु लाइक्स ग्रीन कलर, ई फेसेस वन हु लाइक्स, ब्लू, तो ब्लू यहाँ बैठ जाएगा, ब्लू यहाँ बैठ जाएगा। ओके गाइज ये थोड़ा सा है, ओके हाँ 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 हाँ, आई वॉज रीडिंग समथिंग रॉन्ग, सो ये वाला होगा, है ना। ओनली वन स्टूडेंट वन हु लाइक्स फेसेस द ग्रीन, ओनली 1% बिटवीन ई एंड लाइक्स ब्लू कलर, वेरी गुड। ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी, अब बताओ ये बचेगा ही नहीं सवाल। सही, तो ए को ऐसा करूँ मैं, डी को यहाँ बैठा देता हूँ, ए को यहाँ बैठा देता हूँ, हो गया। ए बी सी यहाँ बैठ जाएगा, एच ई यहाँ बैठ गया। अब आपने लेना क्या है पंगा, आपको एफ के बारे में कुछ ना कुछ तो क्लियर होगा, नहीं तो आपको जी, जी फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ वन लाइक्स ब्लैक कलर, तो ब्लैक यहाँ, जी यहाँ बैठा दो, ब्लैक इसको दे दो, ठीक है, ब्लैक इसको दे सकते हो आप लोग, ओके, ब्लैक इसको दे सकते हो आपको, दिस वुड बी द इम्पॉर्टेंट। और गाइज ऑरेंज ये हो जाएगा, ओके, और ये ऑरेंज, तो दिस वन वुड बी वाइट, ये आपका वाइट हो जाएगा, ओके। सो दिस इज ऑल द अरेंजमेंट। अगर आपको गाइज यू वांट टू सी दैट, देन यू कैन सी, यहाँ आके इसे देख सकते हो, दिस वुड बी द इम्पॉर्टेंट वन, एज यू कैन सी। मैंने आपको ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है गाइज। So we have done near about 4 or 5 PYQs. So I think this will, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ऑफन पूछे जा सकते हैं। So please guys have a look such type of question, and I used to take a 3 special classes on LRDI and Quant and GK, general awareness. So you can join me there on Unacademy app. This is my referral code. Anybody of you wants to go for a plus, this is my referral code guys. You can use my referral code and you can avail 10% discount. आपको 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है, ओके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर joining this session. Soon I will come and guide you some of the other part of LR and DI. So guys please try to develop the conceptual understanding, not कि क्वेश्चन करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपने, ओके। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस, okay, so thanks a lot. See you in my special courses which where I used to take my classes, जहाँ पे मैं अपने क्लासेस को लेता हूँ। So thank you everyone, thanks a lot guys, bye, take care, let's crack it, and best of luck for the every MGT exams. Bye guys, bye.